Okay, let me check if we're live or not. Okay. गेट बंद कर देना मम्मी, ठीक है? Okay, let me share the link with within the couple of groups. थोड़ी एक आधी जगह जहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ, जिन ग्रुप्स में मैं चैट वैट करते रहता हूँ. ठीक है. ओके, दो नोटिफिकेशन जा चुकी है. Hello everyone. Hi Edtech. Hello. Good to see you here. Okay, let's wait for 1 or 2 minutes. Then we'll start discussion. तब तक तुम यार हेलो भांगरा फोक्स, मस्त नाम है भाई, वैसे बढ़िया लगा. ओके, तुम भी सोच के रहो यार लोग अपना, क्या क्या तुम्हें पूछना है, किस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं आज. तुम्हारा कोई डाउट, कुछ भी रिलेटेड, क्या भी जो कुछ भी चल रहा हो, आज वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. थोड़ा देखते हैं कि यार कैसे हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आजकल लोग फेस कर रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ें. यप. हेलो आदित्य. डीएसए प्रिपरेशन सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड. ओके परफेक्ट, काफ़ी सही. इसके ऊपर आएंगे पक्का भाई, इसके ऊपर आराम से हम अच्छी खासी बात कर सकते हैं, ज़बरदस्त. इसके ऊपर मेरा असाइनमेंट राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है बस में. अच्छा भाई आलू, ठीक है, ये भी बात करते हैं बिल्कुल. और इंटरेस्टिंग सवाल है. हेलो पर कैसे हो आलोक. हेलो सूर्या. हेलो सूर्य प्रसाद रेड्डी. आई आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी. असेसमेंट, हाँ वो यार कोई दिक्कत नहीं है आलोक, समझ गया. सर मुझे मेरे रिज्यूमे में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है. अच्छा स्लोविट्स, इसके ऊपर ही बात करते हैं. हाउ शुड आई रिजाइन फ्रॉम स्टार्टअप विच आई जस्ट ज्वाइंड. बढ़िया. हाउ कैन आई गेट रेफरल एज आई बिलोंग टू टियर 3 कॉलेज. पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई भी बैठा है और बाकी भी जगह कर देंगे, चिंता मत करो. और प्लीज स्पीक इन इंग्लिश. ओके सूर्य प्रसाद, no issues from my side. Let's keep this stream in English. Actually what happens here is like I spend most of my time speaking in English. So most of my teammates are like in corporate we usually speak in English, right? So that's why I spend most of my time speaking in English. That's why I like to speak in Hindi whenever I'm talking to people, whenever I'm talking to YouTube videos and like wherever. So that's why I try to speak in Hindi in that perspective. Hello Suraj, कैसे हो? Okay. Let's start with. I'm gonna start with the topmost question because those folks obviously joined early. We're gonna start with DSA preparation. The question asked by Bhangra folks. That question is DSA preparation, service based to product based. Okay. I'll try to keep it very small. Okay. And
sorry, if you have any follow-up questions, feel free to ask those questions as well. Okay, so let's start with the first question. DSA preparation, service based to product based company. Okay, if you want to join any product based company at any point, it can be SD1, it can be SD2 position, whatever the position is, whatever if it is related to software development, koi bhi position ho, it can be anything, but ultimately the only thing required is DSA. First thing required is DSA, then you can move towards next things, right? Now, to understand DSA, to learn DSA, there are multiple resources, multiple places. You can go to YouTube, you can learn from different places. And if you still feel like you are unable to get or grab all those things, like you can't take any course from any place like Newton School as well, right? But the best thing that you have to do is basically spend your time. Let's say whenever you're working, right? Let's say you're working in your company, you spend some time in your company, but have a 3 hour time or 2 hours at least, so that you can spend your that time and do DSA preparation in that. And on weekend, try to solve at least 9 to 10 questions per day. Have this consistency and you will be able to switch from a service based company to product based companies. There are a lot of people I have referred in my company who cleared all the interviews being from a service based company. So it is completely possible, it usually happens. And like whoever is willing to do something good, they will do. Okay, so if there are people in your company who wants to join good companies, who wants to prepare DSA, create a group with them, and then practice coding with them, and then you will be able to do all those things, right? So DSA is the key. Spend as much as time you can. There are multiple resources, multiple places you can do anything you want. Okay, at this moment I cannot share a lot of resources, but in my Telegram channel I usually share DSA preparation stuff. Sometimes some documents, some websites, some questions you can have some reference from there. Okay, talking about the next question which was asked in this stream. Oh man, a lot of questions have been asked till now. I'm gonna start from the top only. So Alok has asked, मेरा assignment round clear नहीं हो पा रहा है on campus में. Okay, Alok, this is a problem that most of the people face. Okay, and to be honest, it's gonna take some time. It's gonna take some time to get comfortable with online test. ठीक है. बात करते हैं, मेरे खुद बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं हुए थे. आई यूज्ड टू सिट विद माय फ्रेंड्स, स्टिल वी ऑल weren't able to clear a lot of ऑनलाइन टेस्ट. पहले देखो यार कौन से टाइप के टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं आजकल. अगर हम देखें तो हैक विद इन्फी इज लाइक बहुत डिफिकल्ट चीज़ें पूछ रहे हैं, है ना. तो हैक विद इन्फी समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट. मतलब हैक विद इन्फी का जो फाइनल राउंड होता है वो ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे भाई तुम्हें 50 लाख बेस पैकेज के साथ हायर करेंगे, विच इज़ नॉट द रियलिटी. ठीक है, तो पहले देखोगे यार किस टाइप के तुम्हारे असेसमेंट्स पास नहीं हो रहे, किस कंपनी में तुमने अप्लाई किया है, वो वाली सारी चीज़ें, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्रैक्टिस DSA. दिस इज समथिंग दैट you have to do ultimately, and side by side give what do we call virtual virtual code contest and code forces. So what happens in virtual contest is you are gonna sit in that contest, you're gonna code something, and ultimately you will be able to what do we say, practice a lot, right? So in a time period. Ultimately an online test is about solving some questions, passing all the test cases within a time limit. And to get that time limit perfect, to get those things perfect, we have to be preparing a lot, right? Let's say, so you have an interview. For an interview you can give mock interviews, you have DSA kind of interviews, you can prepare DSA problems for that. But for online rounds you have to give some contests so that you can bound yourself and practice your DSA skills over there. Okay, so it's gonna take some time, it is not easy, but ultimately that's gonna help. Moving onwards to next, slow vids have asked a question. सर मुझे मेरे रिज्यूमे में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है. ओके यार, मैं हूं ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, अल्टीमेटली मैं सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ. आई स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, सो दैट दोज पीपल हु हैव जॉइंड अर्ली दे विल गेट सम बेनिफिट. स्लोविट्स हैज आस्क्ड लाइक, सर मुझे मेरे रिज्यूमे में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है. अल्टीमेटली स्लोविट्स,
uh, if you want to add a project, ultimately you're going to need some tech kind of thing. Let's say if you're a web developer, if you are into development, any kind of development, choose anything and just build a project, man. Just instead of trying those things out, you can go to online. There are on YouTube people who teach like starting this project and ending this project, like start to end basically. So learn from them. Try to basically hello. Okay. Oh, this bar is something else. I thought it's something. Okay. So try to build things. You can build by yourself, but if you are not able to do that, there are tutorials available. Those tutorials are going to help you to basically add projects in your resume. So my suggestion is follow tutorials. That's great. Follow tutorials, build projects. ठीक है. ऑडियंस ड्रॉपिंग, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं मुझे लगता है. हाउ शुड आई रिजाइन फ्रॉम अ स्टार्टअप विच आई जस्ट ज्वाइन? आदित्य यार, रिजाइन करने की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. इफ़ यू हैव अ बेटर कंपनी, बेटर ऑफर, जस्ट रिजाइन. ओके. सो रिजाइन के कुछ सीन नहीं है. आप बस थोड़ा सा ये देख लेना कि आपका नोटिस पीरियड कितना है. अगर नोटिस पीरियड ज़्यादा है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है. और रिज़ाइन, आई गेस रिज़ाइन से कुछ नहीं होता है. रिज़ाइन करने से पहले आपके पास ऑफ़र होना चाहिए, ठीक है. तो कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहो. जब एक ऑफ़र मिल जाएगा तब रिज़ाइन करना सिर्फ 2 मिनट का काम है आपके लिए. एक ईमेल लिखोगे, मैनेजर से बात करोगे, वो आपको बोलेंगे कि रिज़ाइन नहीं करना है, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है. तो इतना कुछ है नहीं सीन रिज़ाइन वाला. बस अभी अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन चलता है, ठीक है. इस इंडस्ट्री में सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन तभी डिज़ाइन करना है जब आपके पास एक अच्छा बढ़िया सा ऑफर हो, ठीक है. हाउ कैन आई गेट रेफरल एज आई बिलोंग टू Tier 3 कॉलेज? पर जैन भाई ने क्वेश्चन पूछा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन भाई. पर कोडिंग स्किल्स बढ़िया कर लो, ठीक है. तुम्हारा नाम याद कर लिया मैंने. आगे तुम्हारे पास कोडिंग स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट से अच्छा रिज्यूमे है, सारी चीज़ें अगर बढ़िया हैं, मैं रेफ़र कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बाकी लिंक्डइन पे अंधे लोग बैठे हैं रेफ़र करने के लिए. बस तुम्हारे पास स्किल सेट, ये वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए. नमन कौशिक ने पूछा डबलिन में इस बार रेफरल से भी नहीं होगा? नहीं नमन भाई, नहीं हो पाएगा यार. मैंने पूछ लिया है इंटरनली, तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटर्न्स को वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं. तो अमेजोन डबलिन की पोजीशन ना कुछ सेंस बन नहीं रहा है उसका, तो मत अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ उसे, ऐसा कुछ था. ओके, इफ यू कैन tell us how to start preparation of DSA while working in service-based company like Cognizant. Bhangra folks has asked a very nice problem. Okay, a very nice question, I would say. यार, आपको start करना है preparation of DSA. So it basically starts with learning a language. So my suggestion for any language is like, यार अगर DSA कर रहे हो ना भाई, प्लीज़ या तो जावा में कर लो, या फिर आप शुरू कर दो उसके अंदर C++ के अंदर. इन दोनों के अलावा ना मुझे इतना कुछ सेंसिबल लगता नहीं है. मैं इंटरव्यूज़ में देखता हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक बार की बात है, पाइथन में वो बंदा कोड कर रहा था. मैंने एक इंटरव्यू में उससे पूछा कि भाई एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का सिंपल सा प्रॉब्लम दिया, मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से वो करता है, किस तरीके की अप्रोच बनाएगा, ये वाली सारी चीज़ें. उस बंदे ने क्या किया, 4 इनबिल्ट फंक्शन मारे, एक बार सॉर्ट कर दिया और इस तरीके से आंसर निकाल के रख दिया. और मुझे लगा भाई, मैं यही चीज़ तो चेक करना चाह रहा था, तू एग्जैक्टली किस तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ कर रहा है, कहाँ पर किस तरीके के लूप्स लगाएगा, कोडिंग स्किल्स का आइडिया लेना चाह रहा था मैं, और तूने भाई ये इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर दिया. तो नेक्स्ट मेरा सिंपल यही प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट फॉलोअप मेरा यही था कि सेम क्वेश्चन है, बिना इनबिल्ट फंक्शन ने करना है, और उस बंदे को 40 मिनट लग गए उस चीज़ को करने में, और वो फिर भी नहीं कर पाया, ठीक है. तो भाई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, गोलैंग यूज़ कर रहे हो, भाई लैंग्वेज भी कुछ है. आप एक भाई लैंग्वेज भी कुछ आई थी अभी कुछ टाइम पहले. तो लैंग्वेज बहुत सारी हैं भाई, तुम्हें ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है. इनफैक्ट अगर आप प्रायोरिटी क्यू स्टैक ये चीज़ भी यूज़ कर रहे हो ना, अगर इंटरव्यूअर तुम्हें बोल दे कि यार ये तो खुद अपना इम्प्लीमेंट कर दे, तो तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए. अल्टीमेटली ये बेसिक्स हैं यार. आप प्रायोरिटी क्यू आप एसटीएल से तो यूज़ कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए ना कैसे चीज़ काम कर रही है. तो वो सब आना चाहिए सबसे पहले.
व्हेन यू आर डन विद द लैंग्वेज पार्ट, मेरे दो ही सजेशन है, जब आप दोनों लैंग्वेज पार्ट पे अपना बढ़िया तरीके से सेटल हो जाओगे, उसके बाद में आप डीएसए शुरू करो। डीएसए के लिए लीड कोड है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और आप तब कंफर्टेबल हो जाओगे, मतलब जब आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन थोड़े अपने आप करने शुरू हो जाना, तब आपको हो जाना चाहिए कि अब मैं कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ। और अगर आप अभी से कंपनी में काम कर रहे हो तो रेफरल लेके डायरेक्टली इंटरव्यूज पर भी जा सकते हो। प्लीज ऑल्सो टॉक अबाउट बाउंड इन कंपनी 2 years बॉन्ड। ओके, आलोक ने क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड का। भाई देखो, बॉन्ड अगर हम देखें ना, लीगली बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं कंपनीज, खुद ही अपने ऐसे टर्म्स बनाए रखते हैं, ये सारी चीज़ें करिए रखते हैं, फिर आपसे कुछ लीगल पेपर साइन करा देते हैं। और कुछ कंपनीज तो हैं लीगल पेपर भी साइन नहीं कराती। अगर आपके पास कोई लीगल पेपर ऐसे आपने साइन नहीं कर रखा है, जो वो वाला पेपर होता है एफिडेविट काइंड ऑफ लीगल, या फिर कंपनी ने आपको ऑफर लेटर के अंदर उन्होंने अच्छे तरीके से बोल्ड में लिख रखा हो 2 years बॉन्ड, अगर वो वाली चीज़ नहीं है तब तो भूल जाओ कि होता भी है, तब तो तुम थोड़ा सा स्ट्रगल मारोगे, थोड़ा सा कंपनी वालों को डराओगे, काम मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रखा है, चाहे डिजिटली चाहे अपने कुछ हाथों से, तब भाई वो बॉन्ड थोड़ा दिक्कत करने वाला है। अब बॉन्ड के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो यार आप डायरेक्टली रिज़ाइन कर दो, और मतलब रिज़ाइन तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, अपने मैनेजर या जो भी टीम है एचआर टीम, उनसे बात करो, बात करके उन्हें बताओ कि मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। अब तुम्हारे बॉन्ड का क्या चक्कर है ये बताओ, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो कंपनी से करती हैं, वो बोलती हैं कि यार हमने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना ट्रेनिंग का अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये XY अमाउंट हमें वापस पे करना पड़ेगा और हम आपको छोड़ देंगे। या फिर आपकी 1.5 साल की सर्विस रह रही है, उसका आपका कुछ इतना अमाउंट बन रहा होगा, और ये आप जब दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड का सीन। पहले तो यार बॉन्ड से ना बच के रहो। आलोक भाई, आप थोड़ा सा फंस चुके हो बॉन्ड वाली चीज़ में। मैं अपने जूनियर्स को या जो भी लोग इस टाइम पर देख रहे हैं, बॉन्ड बॉन्ड वाली चीज़ से थोड़ा सा दूर रहो यार। बॉन्ड के चक्कर में आने से अच्छा है 5 लाख कम पैकेज वाली कंपनी ले लो, क्योंकि वहाँ से आप स्विच कर पाओगे। बॉन्ड से स्विच करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, एक ऋतिक भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच कंपनी टू जॉइन, सर्विस बेस्ड 6.2 LPA और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 5.5 LPA। काफ़ी 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 डिफिकल्ट सा कह सकता हूँ मैं। वैसे इतना देखो, सच बताऊँ ना, 5.5 में और 6.25 में ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि यार आपको डीएसए वीएसए में आप सही जा रहे हो, तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लो और उससे आगे निकल जाओ। लेकिन वहाँ निकलने से पहले आपका क्या सीन होना चाहिए, आपको डीएसए अच्छे से आना चाहिए। जब आपको लगे कि यार मुझे डीएसए वीएसए अच्छे से आता है, तो देखो किस कंपनी के अंदर छोटा नोटिस पीरियड है, वो ज्वाइन करो और निकल जाओ। वरना मेरे ख्याल से है ना, पैकेज इतना मैटर करता नहीं है। देखो इनिशियल स्टेट में मेरा मानना ये है, क्योंकि जब मैं अमेज़न पे इंटर्नशिप कर रहा था, 6 महीने में, 6 महीने एक छोटा सा स्पैन होता है, 6 महीने में मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली थी, जो कि एक सर्विस बेस्ड की कंपनी में बंदे को करने में 1 साल या फिर 1.5 साल बहुत आराम से लगता है, ठीक है। और ये सिर्फ मेरा नहीं है, हमें काम इस तरीके का मिलता है, हमें उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। हम कुछ नया प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, हम कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ आपको जाना चाहिए, या फिर उससे पहले कंसीडर कर लो जहाँ पर आपको छोटा वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, नोटिस पीरियड उस तरह। पर Jan is like how to connect with you, as you can watch your videos and of course yeah, Telegram channel is good, or lives is nice as well. Yeah, to be honest, LinkedIn पे मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ, वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो मैं लोगों के तो दूर अपने पर्सनल मैसेज भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो लाइव काफ़ी इंटरेक्टिव है, मुझे लगता है ये काफ़ी सही तरीका है कनेक्ट करने का। आगे नीड होगी तो कुछ और नया तरीका ढूंढेंगे बातचीत करने का। वैसे अच्छा है आपने मुझे ये ध्यान दिलाया। पर ओके, मीनाक्षी शर्मा भैया, 1 महीने में प्लेसमेंट है, Tier 3 कॉलेज डीएसए करी है कोडिंग निंजा से, पर प्रैक्टिस नहीं हुई है किसी प्लेटफॉर्म पर, टाइम भी हो गया है डीएसए किए हुए, क्या करना चाहिए, रिवाइज कर ली है 10 दिन पहले। मीनाक्षी शर्मा, ओके, सो लेट्स रिमूव सम कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। प्लेसमेंट आ रही है, परफेक्ट। Tier 3 कॉलेज को हटा दो, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। डीएसए करनी है, आपने प्रैक्टिस करी थी कहीं से भी करी हो, जगह के नाम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है आपने डीएसए करी, आपने 10 दिन पहले रिवाइज़ कर लिया।
ठीक है। अब अल्टीमेटली देखो मीनाक्षी, आपके अगर कॉलेज में प्लेसमेंट आ रही है तो डायरेक्टली वो डीएससी के बेसिस पर नहीं आने वाली है। आपके अगर कॉलेज में प्लेसमेंट वाले आ रहे हैं और आप टीयर 3 कॉलेज से हो, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो कंपनीज आएंगी ना वो एप्टीट्यूड का टेस्ट भी लेंगी। ठीक है, तो आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, आपको पजल्स के लिए प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद में साइड बाय साइड डीएससी की प्रिपरेशन तो आपकी चलनी ही रहनी चाहिए। कोर्स फोर्स में जो आपने चीज़ें सीखी थी, ठीक है, अब टाइम है ना आपको उन सारी चीज़ों को रिवाइज करने का और अपस्किल करने का। अपस्किल से मेरा मतलब है जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें करनी है आपको, और उसके साथ में ट्राई करना छोटे छोटे वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने की। वर्चुअल कॉन्टेस्ट से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यार किस तरीके से आप प्लेसमेंट के टेस्ट में बैठने वाले हो, और डीएसए की जो प्रॉब्लम्स है ना यार, लीड कोड की जो मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम से आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और लीड कोड के कौन से प्रॉब्लम करने हैं जो सबसे ज़्यादा लाइक्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे लाइक वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें करना है। Hello, Bhaiya, I'm undergraduate and prepared myself as a React developer, but none of the companies allow me for interview process. Is it possible to get a graduate, get a job React developer? Okay, Abhishek Jaswal, very nice problem, very nice question, and it's going to be a bit painful to be honest, being a developer, being a very good developer, and still not getting a job. But there is a solution to that. There are a lot of companies which are on the basis of the development skills. Now, talking about those companies, my favorite, one of my favorite companies, Gojek, Gojak. So Gojek is someone, Razorpay is someone, Zomato is someone. Urban company will hire you with less DSA, more of your development skills. But Gojek and Razorpay, they have complete their interviews are completely based on development skills only. So you have to apply for those companies, get referral for those companies, and like mark those companies. थोड़ा सा डीएसए करना है मैक्सिमम, अपना अपना आपने वो तो कर ही रखा है बढ़िया तरीके से रिएक्ट, तो यार जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा डीएसए करके ज़रूर रखना है, अपनी रिएक्ट वाली चीज़ें सारी रिवाइज करके रखो, और मेन कंपनीज को टारगेट करो। ऐसी कंपनीज को टारगेट करने से अच्छा है कि यार मतलब टारगेट फुल टाइम करने से अच्छा है आप इंटर्नशिप पे लग जाओ। इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको कम डीएसए के ऊपर, हैवी डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग ले लेते हैं, और उसके बाद में आप फुल टाइम इंजीनियर की तरह कन्वर्ट हो जाते हो। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ डेवलपर्स को हायरिंग में काम आती हैं। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं दे सकता हूँ, ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सर विच इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? देखो द लिमिट ने ये क्वेश्चन पूछा है दो बारी, विच इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मेरे भाई देखो लिमिट, मेरे भाई या फिर मेरी बहन या फिर जो भी आप कुछ हैं, तो स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोनों का मतलब सेम होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कि वो अपना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप यानी कि वो एक कंपनी है जो कि स्टार्ट कर रही है। हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हो सकता है वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो। इंडियन स्टार्टअप जो है, क्रेड हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, बहुत सारे हो गए आज के टाइम पे, है ना, सबके सब प्रोडक्ट बेस्ड हैं, सबके सबके अपने प्रोडक्ट्स ही हैं, अधिकतर अधिकतर लोगों के। तो दोनों बराबर हैं। आपका मतलब होगा कि यार स्टार्टअप में डिफरेंशिएट कर दो या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो स्टार्टअप और मल्टीनेशनल कंपनीज, देखो मैंने है ना स्टार्टअप्स में कभी इतना इंटेंसिवली काम किया नहीं है। मैंने मार्केटिंग की साइड पे थोड़ा सा काम किया था। मेरे पास स्टार्टअप्स के ऑफर थे, लेकिन अर्बन कंपनी का ऑफर था, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा अच्छा डिजर्व करता हूँ। तो मुझे इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं। अल्टीमेटली मुझे जो लगता है आपको अच्छी जगह के लिए एम करना चाहिए, जो आपको ज़्यादा पे दे, जो आपको ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी दे। क्योंकि स्टार्टअप में आप काम करते हो, मैं देखता हूँ 1 साल बाद, 6 महीने बाद वही लोग फिर से टीएसए वीएसए कर रहे होते हैं, फिर से ग्राइंड कर रहे होते हैं, एंड देन इट्स लाइक कि आप लोग फिर से वहाँ पर जा रहे होते हो यार, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग फिर से मतलब सर्विस बेस्ड मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर रहे होते हो, है ना। तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती यार। अल्टीमेटली अगर आपका कुछ गोल वोल है तो वो वाली मतलब चलता रहना चाहिए सारी चीज़ें। मैं एक बंदे ने टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगा है, वो भेज देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं इस वापस क्वेश्चन के ऊपर।
आ, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आप वापस स्टार्टअप के ऊपर आ सकते हैं। मतलब स्टार्टअप के ऊपर आप कभी भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस लो, स्टार्टअप में जाके वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, टेक लीड बन जाओ, ऐसे कुछ भी बन जाओ, ठीक है। भागरा फोक्स ने पूछा है, कैन यू प्लीज शेयर योर टेलीग्राम चैनल टू। मैंने नीचे डाल दिया, अभी अभी पेस्ट किया है भाई। हेलो भैया, आई एम अंडर ग्रेजुएट प्रिपेयर रिएक्ट। अच्छा ये हो गया है। अभिषेक जायसवाल, आपने वेब कोडिंग कोडिंग क्लब में किसी से कोर्स लिया था, डीएसए का है। नमन कौशिक, आई कैन नॉट शेयर दिस ओवर हियर। I guess I'll answer this question in Telegram channel. Courses मत लो, there is enough resources prepare for bro, please speak in English. Surya Prasad Reddy, dude. To be honest, I wanted to do that, but my audience is not letting me do that. I'm sorry, Surya. Is it good to resign from a startup that I just joined? At the time of interview, I assured them that I will be there, but now if I'm getting much higher package, more than double, how should you approach? Hey, Aditya, dude, don't feel guilty about it. This is life. You have to do these things, man. You have to take some big decisions. Let me share my experience. When I was in my final year, when I was in my third year, I sit for an interview process of urban company. I got rejected in my final year. Around 3 4 months later, I got sit for another internship. मैं दोबारा internship में बैठा और मैंने फॉर्चुनेटली इंटरव्यू क्रैक कर दिया। दे वर इनवाइटिंग मी फॉर अ 6 मंथ इंटर्नशिप, ठीक है। मेरा ये सीन था, मैं 6 मंथ इंटर्नशिप करता, वहाँ पे फुल टाइम इंजीनियर की तरह पीपीओ ले लेता। बट आई हैड टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई ठीक है इंटरव्यू क्लियर हो गया, लेकिन 6 महीने अगर मैं अब डीएसए पे ध्यान दे दूंगा, थोड़ा अच्छा कर लूंगा, अच्छी जॉब लग जाएगी। मतलब अर्बन कंपनी की भी ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर जाऊंगा। तुम्हारे पास तो पहले से ऑफर पड़ा है भाई, अगर डबल से भी ज़्यादा पैकेज है, क्यों रुक रहे हो? कल कल कर दो भाई, कल कर दो ईमेल, ठीक है। ज़्यादा देर करने की दिक्कत नहीं है। तुमने उन्हें बोला था, अश्योरेंस दी थी, ये सब हवाबाजी होती है, बोलने की बातें होती हैं। अल्टीमेटली अपना देखो भाई, अपनी ग्रोथ देखो कहाँ पर है और आगे निकल जाओ, ठीक है आदित्य सिंह भाई। द लिमिट, विच कंपनी इज द लिमिट, मैं इंजीनियर पूछ रहा हूँ, इनकी तो खुद ही बातें शुरू हो गई भाई। सर, हाउ मेनी टाइम्स कैन वी स्विच एज अ फ्रेशर इन फर्स्ट ईयर इन कॉर्पोरेट? The limit, dude. You can switch any number of time. There is nothing that's gonna stop you. Okay, but the thing here is like, uh, what happens is like, let's say if you're switching companies in every 2 months or every 1 month or every 3 months, it does not creates a good impact, right? So let's say you switch 5 companies or 4 companies. Whenever you will be sitting in the next company, the hiring manager is going to reject you, even if you're a great candidate. So this is going to impact your resume bad, and every company you will spend some time on onboarding, learning a new technology, working on it, and then you leave. Onboarding, working on a new technology, then you will leave it. Onboarding, working on a new technology, and then you again leave that company. So it doesn't make sense. Instead, stick to one company, spend some time over there, and like climb the ladder upwards. So it's gonna help you a lot. uh, Please give internship for women or third year students. Shivani, there's a special program called Amazon Wow. So I shared about that Amazon Wow program in around 1 month back on my Telegram channel. There are a lot of diversity kind of hiring going on. Just to stay up to date, join that Telegram channel. You'll be able to do that. ओह! सूरजीत सिंह भैया, टेलीग्राम पे वॉइस चैट स्ट्रीम कब करोगे? अरे! बिल्कुल बढ़िया आइडिया लग रहा है, बिल्कुल करते हैं। अंजलि जैन, हाय मुकुल, डू यू रिमेंबर मी? हाउ टू कनेक्ट विद यू ऑन टेलीग्राम? थैंक यू सो मच Anjali for asking this. Uh, if you guys don't know Anjali, she is my friend, so she's bluffing me over here. You can join my Telegram channel. I have provided the link. भैया मैंने 2000 प्लस कोडिंग क्वेश्चन कर लिए हैं, डीएससी भी कर लिया है भैया, अमेजोन में रेफरल दे देना। सूरज पटेल, डूड, ओके, uh, DM me on LinkedIn saying that I have like we have talked on
और लाइव स्ट्रीम ऐसा कुछ करके, या मुझे याद दिला देना, ठीक है, मैं कर दूंगा रेफर, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। ओए लिंक नहीं आता, रेफरल से भी ट्राई कर लिया। ध्रुव टोमर, इट्स अ वेरी वैलिड प्रॉब्लम। इसके ऊपर भाई मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वीडियो भी बना सकता हूँ मैं इसके ऊपर। बट द थिंग हियर इज, if like if you go to Amazon job, if you go to Microsoft job, if you go to any other let's say Adobe or any other big tech company, especially let's take an example of Amazon, because there are more than like 16,000 open positions at this moment. For if you search for SD, software development engineer, there will be 5, 10, 15, 50 uh, openings, but at this moment all those 50 positions are not available. The hiring is not going on into that position, so you have to look for fresh openings through. Whenever fresh opening comes in, you have to be aware of when things are going to happen. So let's say when you are in fourth year, in the month of October, November, December, Amazon, Microsoft, Goldman Sachs, these company hires, and everyone gets online assessment link, so you have to wait for that specific instance. Okay, so that is going to give you an online assessment test, not just you, everyone whoever applies. In that manner, referral doesn't work. Referral helps you a lot when you are, let's say, inside another company, or when you are working, तो वहां पर रेफरल की बहुत आसानी होती है। Dhruv has asked, okay, Surya, I'll speak in English. Meenakshi has asked another question. जीएस आ रही है और इन्फोसिस एप्टीट्यूड नहीं, क्या हुआ? जीएस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एस्टिमेट समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जीएस पर फोकस करना चाहिए। Meenakshi, let me tell you one thing. ZS is a very good company. Okay, if you're applying for BTA position or whatever position there is, ZS is genuinely a good company. I applied there, and I have given their interviews. I cleared the guesstimates round, all those rounds. But in the hiring round, they rejected me, saying that I'm a technical person and I'm going to leave the company within 1.5 month or something like that. So that's the reason that they gave me, and rejected me in the final HR round. But ZS is genuinely a good company. What you can do right now to prepare for ZS, why I don't know why they call it ZS भी नाम ठीक है तो यूट्यूब पे जाओ, गेस्टिमेट्स की है ना कुछ 15-20 वीडियोस हैं, वो सारी की सारी कर लो। और मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप जो पजल्स होती है ना यार, वो पजल सॉल्व कर भाई, क्योंकि पजल हर राउंड में पूछी जाएंगी, हर जगह पर पूछी जाएंगी। Guesstimate is not a big thing. Guesstimate is not a difficult thing. You just have to guess, right? If someone asks me, uh, what is the dimension of this screen, I'll take some guesstimate, like the icon is of 1 centimeter, and there can be 10 icons can be fitted in this screen, right? So that means the screen can be of 10 something. My internet connection is unstable. Please wait while reconnecting. Let me check what's going on. Oh, it's stable. I don't know why. Oh, it's stable. Cool. So ZS is a good company. I'll suggest you to prepare for that. Crack interviews. It's a good backup. Learn guesstimates, solve puzzles on online YouTube channel, and there are other forums as well. And guesstimates, okay, case studies are also important. Case study, guesstimates, puzzles, and some basic communications, some basic HR questions. You'll be able to crack ZS nicely. How to leverage an offer from how to leverage an offer from one company with another company? I don't actually understood this problem. Sorry, Jenny, can you repeat? Can you explain it as well? Yeah, how much is asked for CS fundamentals like DBMS OS in the interviews? Pranav Tiwari, nice question, very nice question, man. It depends on which company you are applying. So let's say if you are giving Google interviews, they don't care about your DBMS skills, OS skills, and
If you are giving interviews as in for the SD position at Amazon, we don't care about these things. We just want you to perform in a problem solving interviews, right? But if you are giving Amazon cloud support, AWS cloud support engineer role, then OS and networking matters a lot. So you have to study all those things, man, but not specific. Like इतना grind करने की जरूरत नहीं है. You can like priority होनी चाहिए सबसे ऊपर oops. उसके बाद में आपको होना चाहिए DBMS, then networking, then operating system. Go with this priority. Spend most of the time on what do we call it? OOPS, object oriented programming, low level design, solid principles. इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. And there's nothing specific like you will get rejected on this, but there are companies who ask question on this as well. So Adobe is going to ask some questions on this. JP Morgan के जो international होते हैं ना interviews, उनमें तो पूरे interviews के ऊपर होते हैं. IBM are going to ask about this. So see in which company you have your interview schedule, and then think if you have to revise these things or not. Ultimately, you have to do it at least like you have to complete all these at least once. Oh, Jenny Lewis, dude or girl, whoever you are, looks like you're spamming. Message got retracted. Thank you, Bea, for sharing value. Well, thank you, Abhishek. Where Amazon is my dream company. How's the work culture there? Dude, it's cool, man. It's cool. It's great, man. I don't know why there's a lot of havoc out there, but for me, it's really great. I guess my team is good. I'm able to work with great engineers. I'm able to learn great things over here and chilling. Yeah, that's nice. Where and how can I get to know about internship and jobs later? Openings, links, or take company? Do I need to manually visit the career page? Vishal, get yourself into multiple WhatsApp groups, Telegram channels, and then you'll be able to see every single internship and job post over there. You don't have to visit every career page every single time. So these things, I guess, these things are sufficient. Create a good network. You will be able to get everything. Okay, so the limit has asked a question: is it better to go for a big MNC company abroad as an intern, or join a startup as a fresher in India for 25 LPA package? 25 LPA package as an FTE, dude. Nice question. Firstly, go for stability, man. In India, you have a full time job. Firstly, secure that one. And because you don't know, let's say you went through abroad, you completed your internship, and what if you didn't got the job, right? If you have the caliber, if you are a very good coder and you think you will be able to crack multiple companies, then go for it. If you feel you need a good job at this moment, and then you can later switch on to foreign, so go for the 25 LPA package for full-time job. Waste, हाँ वेस्ट सूर्य प्रसाद रेड्डी भाई, इंग्लिश में नहीं कर सकते. इंग्लिश में we have to practice aptitude for Amazon way around. Dude, there's nothing like practice. If you are if you are able to solve lead code problems, then I guess you will be able to solve things, man. Because these days, what I have seen, in fact, in Google round, in Microsoft round, in Amazon round, the questions are not too difficult. The questions are not related to competitive coding. The questions are related to more of data structures and in their implementation. So if you are able to like do good in that part, let's say there is lead code challenges or not challenges, lead code contest. They are contests in which DSA more implementation kind of problems are being asked. So if you feel if you're able to practice that part, then Sagar, I guess clearing Amazon way around would be a nice thing, or you'll be able to do that nicely. Devendra Singh Rana has asked a question. Hi, Bhaiya. One question about Dublin referral. If someone doesn't have good rank in CPA, then it will be going to work or not? I saw it. Firstly, Devendra Singh Rana, I think you don't know, but the Amazon Dublin internship is not going to work. Okay,
So I got to know recently, I today evening I got to know about that, but that internship is not going to help anyone because they are not sponsoring visa. So if they are not sponsoring visa, they won't be accepting your request even if you get a referral. So if you are looking for a referral for Amazon Dublin position, intern position, that's not gonna happen. Look for full-time positions. What do you want to say about basic model? No, no politics over here. I can't share my views over here. Instagram, I think I have shared a couple of things about that. I have shared my views over there. Feel free to check out. But yeah, how to practice aptitude for? अरे same question अभी तो answer किया. I'm about to join Amazon soon. Board potato, congratulations, man. Question one: what technical stuff like get that I should shop first day? Question two: how to find flat PG partners to live within Bangalore? Okay. Board potato. First question. Git. Obviously, you have to do that. Git inside Git, you have to like spend a lot of time on the merge thing, merge conflicts, how to resolve those conflicts and that stuff. But the thing here is, if you are selected for an interview, it means you are completely ready for that. Okay. मतलब आप बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हो, तभी कंपनी आपको सिलेक्ट कर रही है। अब कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का मैं नाम नहीं बता सकता आपको, जो आपको सीखनी पड़ेगी जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, तब से आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम सीखने के लिए। तो गेट गिटहब ये जो चलो नॉर्मल चीज़ है। आप अपने ऊप्स के कंसेप्ट अच्छे कर लो, आप अपने सॉलिड प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट अच्छे कर लो, आप अपने डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन के कंसेप्ट अच्छे कर लो। ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या लैंग्वेज सीखना है, किस टेक के ऊपर काम करोगे, ये सब आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। देखो, बात करते हैं फ्लैटमेट पीजी पार्टनर्स की। इफ इस बात की, इस चीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मतलब देखो, एक है ना अमेज़न में हमारे स्लैक चैनल्स होते हैं अलग-अलग लोकेशन के हिसाब से, वहाँ पर लोग बहुत फ्लैटमेट्स और पीजी पार्टनर्स को ढूँढ रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी अगर आप वर्क फ्रॉम होम से जॉइन कर रहे हो और उसके बाद में आपको मतलब कंपनी जॉइन करने से पहले आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, मतलब जैसे आपने घर बैठे-बैठे जॉइन कर लिया और आपको पास 1 महीना है अपनी बेस लोकेशन पे जाने के लिए, तब आप उस स्लैक चैनल पे से अपने कलीग्स को ढूँढ सकते हो जो वहाँ पर पीजी फ्लैटमेट वगैरह शेयर कर सकते हैं। एंड इफ नॉट, अल्टीमेटली इट्स गोना बी अ बिट हेक्टिक फॉर यू टू डू दैट थिंग। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है आपको कुछ होटल, एयरबीएनबी, ओयो टाइप के में रहना पड़ेगा, और जब आप अपने कलीग्स वलीग से जा सकते हो तो फर्स्ट डे सेकंड डे आप उनसे बात करो कि यार वहाँ पर कैसी जगह अकोमोडेशन है, कोई साथ में रहना चाहता है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम हो, आपके पास अपना लैपटॉप है, ऑफिस का थोड़ा टाइम है आपके पास, तो स्लैक पे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तनिष्क टोंग, भाई आईएमओ तो मुझे पता ही नहीं, ओएस इक्वल टू एक्सप्लेन डेडलॉक। डेडलॉक भाई बहुत ही फेमस कंसेप्ट है अब तो, मतलब मैंने तो मीम्स देख देख के समझ गया था क्या चीज़ होती है, उसके बाद में पढ़ा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे में ओएस सब्जेक्ट नहीं था। बाकी मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तनिष्क ने क्या पूछा है? जेनी ने पूछा, भैया किसी कंपनी को कब बताना सही रहता है कि मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है, जब एचआर का कॉल आया तब, या इंटरव्यू देने के बाद? ऑलरेडी एक ऑफर है, मुझे लगता है कि किसी कंपनी को बताना सही रहता ही नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी ऑफर है। और मुझे ये चीज़ तब हेल्पफुल होती है जब आप है ना नेगोशिएट कर रहे हो, तभी बताओ। उसके अलावा किसी इंटरव्यू प्रोसेस में कभी सेंस नहीं बनाता है। अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाए किसी कंपनी से, आपको पता है कि अ, अगर आपको पता है कि क्या कहते हैं, अ, मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी है, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी हो, या फिर चलो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में नेगोशिएशन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर लेटर आपके पास आ गया और आपके पास एक और कंपनी का ऑफर लेटर है। तो जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा ना, उसके बाद आप इनिशिएट करो, आप एचआर से कॉल करके बात करो कि मेरे पास एक और इंटरव्यू वो है अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक और ऑफर लेटर है, अच्छा पैकेज पे कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ करके अपना पैकेज इंक्रीज कर सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। तो बाकी इंटरव्यू का किसी भी राउंड में ये मत बताओ कि आपके पास पहले से आपके पास कोई ऑफर वगैरह है। भैया प्लीज मेक वीडियो इन ओपन सोर्स, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स, फाइंड द इश्यूज फॉर बिगिनर। भाई ताम, मन की बात छीन ले भाई तूने।
ज़बरदस्त ज़रूर प्लान करेंगे भाई। ओपन सोर्स इज समथिंग विच इज really really close to my heart. It has made me what I am right now. Whatever I'm doing, everything, like अगर ओपन सोर्स नहीं होता भाई, इनफैक्ट अगर GSOC में मेरा सिलेक्शन नहीं होता, so I feel I won't be at this place. I will be doing great things over here. So ओपन सोर्स के ऊपर भाई सीरीज बना देंगे, तुम चिंता मत करो यार। भैया सिस्को SW वर्सेस न्यू स्टार्टअप ऑफ टीम साइज अराउंड 40-30 लाख बेस। भाई 30 लाख बेस है, ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सिस्को भूल जाओ, 30 lakh base is too much. Join that company, you will learn a lot of things. If they are paying a lot, they are highly what do we call it, highly funded, heavily funded. It's gonna be, you will be building things from very start. 40 बंदों से, छोटी टीम होने से कुछ नहीं होता। गिटहब की टीम अभी भी 40 बंदों की है, व्हाट्सएप 20 जनों की टीम के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। तो गो फॉर दैट तनिष्क। Okay, Devendra, full-time opportunity is not available right now. I need a full-time opening comes. Devendra, I don't actually know when. Like Dublin का तो सीन पता नहीं है कब ओपनिंग होगी। मेरे साथ क्या हुआ था अभी कुछ टाइम पहले लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि डब्लिन में ओपनिंग वगैरह है। मैंने पता किया इंटरनली कि भाई सही में कुछ हायर सी नहीं है। मैंने कुछ लोगों रेफर किया, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज क्लियर कर दिए, तो ऐसा कुछ आइडिया मुझे है नहीं कि कब ओपनिंग आने वाली है। नीतीश कपूर, हाउ मच DSA इज रिक्वायर्ड इन वेब डेवलपमेंट? 0। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको DSA की नीड नहीं है। DSA इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड लॉजिक, आपका कोडिंग में हाथ बैठा देगा DSA, मज़ा आएगा काम करने में आपको, लेकिन एज इन स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट के लिए नीड नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो BCA कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं बिना DSA के, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम फ्रॉम ECE, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स ये सब डीप से पढ़ना जरूरी है। अनुज भाई, आई एम ऑल्सो फ्रॉम ECE। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा डीप में नहीं, बट इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कवर अप, राइट। मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था यूट्यूब से, पूरे चैनल कंप्लीट करने पड़े थे, पूरी 250 वीडियो की प्लेलिस्ट। जब आपके ऊपर फाइनल ईयर में हो जाते हो, जब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, आप थोड़े सीरियस हो जाते हो, तो आप अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो। और अनुज, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है इन सारी चीज़ों को पढ़ने का। तो OS, GPMS और नेटवर्किंग, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। थैंक्स अ लॉट भैया, लॉट मजा आया ये इसी सेशन का। अरे देवेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन हूएवर जॉइंड हियर। टैम, डू ओपन सोर्स रियली हेल्प टू गेट इंटरव्यू? ओपन सोर्स है ना, देखो भाई, स्पेसिफिकली कंपनीज होती हैं वो टारगेट करते हैं ओपन सोर्स। गोजेक का जो मैंने नाम बताया वो ओपन सोर्स को देख के करते हैं। जोमेटो जो कंपनी है, मैं उन्हें अपने चैट के स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, जिस कंपनी ने मुझे लिखा कि डायरेक्टली लिखते हैं कि आप, हमने आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी, ओपन सोर्स से कॉन्ट्रीब्यूशन देखी, इसलिए हम आपको रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन रहता है ओपन सोर्स का। ज़्यादा कंपनी जैसा नहीं होने वाला कि ड्रास्टिकली तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा सा, लेकिन चिल सीन है। ओपन सोर्स हेल्प करता है रिज्यूमे सिलेक्ट होने में, काफ़ी सारी चीज़ें में। सूरज पटेल, थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेट्स रैप दिस अप एंड या आई थिंक यू गाइज हैड अ गुड टाइम। नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरेक्टिव भी रखेंगे, कुछ गेम वेम भी खेलते हैं लाइव पे, है ना, चिल करते हैं चीज़ों को। बाकी अच्छा लगा यार, मैंने सच बताऊं, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वाज ग्रेट, रियली ग्रेट मैन टू सी ऑल ओवर हियर। थैंक यू सूरज, टैम, देवेंद्र सिंह, अनुज, जेनी लुइस, सनी लियोनी बोलने वाला था भाई मैं, जेनी लुइस नाम है। नीतीश कपूर, टैंक, हुएवर, सागर सिंह, यासीर। वन गाय वॉज अनहैप्पी, सूर्य प्रसाद रेड्डी, क्योंकि भाई को हिंदी समझने में दिक्कत आ रही थी। But Limit, Vishal Arora, everyone, thank you so much guys, thank you so much for joining man. I'm pasting a link, feel free to join that Telegram channel if you haven't joined. देवेंद्र, वेटिंग फॉर नेक्स्ट सेशन। बिल्कुल भाई, अच्छी तरीके से रखेंगे टेलीग्राम पे वॉइस चैट, सूरज बिल्कुल करेंगे यार, टेलीग्राम पे और भी चीज़ें होने वाली हैं। और एक और चीज़ है, टेलीग्राम पर है ना, एक मैंने लिंक शेयर किया हुआ था, वो रजिस्टर कर देना भाई मेरे लिए प्लीज़। उस पर क्या था वो मैं खुद ही भूल गया, एक अच्छे से कॉन्टेस्ट चल रहा है, हैकाथॉन काइंड ऑफ, तो वहाँ पर अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी it was great talking with you guys. It was, I, to be honest, I never expected this kind of people joining in, asking questions. मैं जब ऑफलाइन कॉलेजेस में जाता था ना, तब बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, तो यहाँ पर पूछने अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, ध्रुव,
सूरज, नमन, शिवानी, लिमिट, द लिमिट इस भाई ने भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, प्रभात गुप्ता, whoever per Jan, whoever joined, thank you so much everyone, thank you so much, have a nice day, good night, bye bye.